Today we will continue our some more viral diseases. So, the disease which we are going to study is mumps. Okay. So, another name for this disease is infectious parotid. Okay, infectious parotid is the another name of this disease. Okay, now what is the causative agent for this disease? Causative agent for this disease is paramyxovirus. It is a viral disease, therefore the paramyxovirus. Okay. Now, what are the general symptoms now we will discuss of this disease? General symptoms. The most prominent or the most characterized symptom of this disease is that the person who is suffering from this disease will have a very much difficulty in opening his mouth. So, it is having, or he or she is having the difficulty in opening their mouth, so they will also have difficulty in talking also, in eating also. Okay. So, there is very much painful situation we can say during this disease whenever that person is having, or whenever that person will open his mouth, his or her mouth, then there is a extreme pain. Okay. So, extreme pain during opening of mouth. Why? Due to swelling. हमारा जॉ लाइन वाला जितना पार्ट है, और वी कैन से पर्टिकुलरली दिस पार्ट, दिस विल बी वेरी मच स्वेलन एंड बिकम वेरी मच स्टिफ. तो अगर ये पार्ट अगर हमारा स्वेलन हो जाएगा तो क्या द इन्फेक्टेड पर्सन विल बी एबल टू स्पीक और ओपन इट्स माउथ प्रॉपरली? नो. ओके. सो मम्स में ये वाला पार्ट ज्यादा अफेक्टेड रहता है. ओके. एंड व्हाई दिस पार्ट इज वेरी मच अफेक्टेड इन मम्स? We have given the name infectious parotid. Okay. And what is the meaning of that parotid? It is one kind of salivary gland in our body. Okay. ये है हमारी बॉडी का एक सलाइवरी ग्लैंड, और हमको पता है हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड हैं. सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड. 3 सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और पैरोटिड का लोकेशन बिलो आवर ईयर लोब्स. ओके. बिलो आवर ईयर लोब्स, दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर पैरोटिड ग्लैंड. और मम्स में आवर पैरोटिड ग्लैंड इज हाईली अफेक्टेड, और वी कैन से दैट मम्स इज द इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. हमारी पैरोटिड ग्लैंड बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, तो हम उस चीज को इन्फ्लामेशन दूसरे टर्म में बोल सकते हैं. ओके. सो मम्स इज द इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इन अवर, और वी कैन से दैट देयर इज अ इन्फेक्शन इन अवर पैरोटिड ग्लैंड. सो इन्फेक्शन होने से क्या होगा? देर विल बी वेरी मच स्वेलिंग इन अवर पैरोटिड ग्लैंड, और स्वेलिंग आ जाएगी. स्वेलिंग के साथ साथ में देर विल बी वेरी मच पेन. ओके. सो द थर्ड सिम्टम इज स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, और इसके साथ साथ में फीवर, sneezing and coughing. Okay. फीवर भी होगा, स्नीजिंग भी होगा और कफिंग भी होगा along with the swelling
of parotid gland, and there will also be one problem associated with this, that the person will be face very much difficulty in opening his or her mouth. Okay, now mode of transmission. What will be the mode of transmission? There are two modes of transmission, either by having contaminated food and water, या तो हम contaminated food and water ले लेंगे, और by directly coming in contact with the infected person. या तो हम बाहर से कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ले लें, ओके, या तो हम डायरेक्टली वायरस ले लें. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेना मीन्स वी आर प्रोन टूवर्ड्स दैट डिसीज. हम जानबूझ के कर रहे हैं, बिकॉज हमको पता रहता है कि बाहर का खाना दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ओके, सो by taking contaminated food and water, and also by directly coming in contact with the infected person. Directly हम contact में कैसे आ सकते हैं? By droplet infection. Okay, that is one kind of indirect mode also. Directly we can come by kissing that person or by some exchange of the body fluid, so we can directly come in contact with that person. Okay, and one more mode, that is droplet infection. We here discussed that the person is having the problem of fever along with the coughing and sneezing. So whenever that person will sneeze, okay, and we also said that it is a disease of salivary gland, and salivary gland का काम क्या होता है? saliva produce करना. तो अब वो saliva infectious हो गया है parotid gland. ओके, पैरोटिड ग्लैंड का काम भी है सलाइवा प्रोड्यूस करना. तो अब पैरोटिड ग्लैंड ही इन्फेक्शियस हो गया है, तो जो सलाइवा वो पैरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, नो, और वी कैन से वो भी इन्फेक्शियस ही होगा ना. क्यों? क्योंकि उसके सलाइवरी ग्लैंड में वायरस प्रेजेंट है. इन्फेक्शियस ग्लैंड से जो सलाइवा निकल रहा है वो भी इन्फेक्शियस ही होगा. सो व्हेनेवर द इन्फेक्टेड पर्सन विल कफ और स्नीज, तो स्नीज के साथ में देयर इज ऑल्सो द रिलीज ऑफ सम काइंड ऑफ ड्रॉपलेट्स और ऑल्सो द रिलीज ऑफ सम काइंड ऑफ सलाइवा. सो बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ दैट सलाइवा, एनी हेल्दी पर्सन कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्शन. ओके, सो by directly coming in contact with that infected person or by droplet infection. Okay, ये तो हुआ हमारा ट्रांसमिशन की बात. अब what is the incubation period of this virus? Incubation period is of 12 to 26 days. हमारी बॉडी में एंटर होने के 12 to 26 डेज के बाद में दैट वायरस विल एक्वायर इट्स मैच्योर पोजीशन. ओके, वो वायरस अपना मैच्योर पोजीशन गेन करेगा, और वी कैन से दैट वायरसेस जैसे ही हमारी बॉडी में आते हैं डायरेक्टली हमारी बॉडी को अफेक्ट करना स्टार्ट नहीं करते हैं. आफ्टर सम टाइम वो देखते हैं थोड़ा, जैसे हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वी ऑब्जर्व फर्स्ट दैट प्लेस. ओके, सो वायरसेस भी जब हमारी बॉडी में आते हैं फर्स्ट दे ऑब्जर्व आवर बॉडी. आफ्टर दैट बाय कोपिंग अप विद द एनवायरमेंट ऑफ आवर बॉडी दे स्टार्ट अफेक्टिंग आवर बॉडी. गॉट इट? सो 12 और 26 डेज होने के बाद में, 12 से 26 डेज होने के बाद में दैट वायरस विल अफेक्ट आवर बॉडी नाउ. ओके, नाउ हमको अफेक्ट करने के बाद में प्राइमरी सिम्टम हुआ सम काइंड ऑफ फीवर और स्नीजिंग. फिर उसके बाद में थोड़े टाइम बाद देयर इज
the appearance of swelling in here part, or we can say below the ear lobe of our part. Okay, फिर उसके बाद में जब ज़्यादा टाइम हो गया, so there is a dense swelling which has been appear over our jaw line. Okay, फिर अगर और ज़्यादा टाइम हुआ then that person will not be able to speak properly or eat properly. Why? Because of swelling. ज़्यादा swelling हो जाएगी तो will not able to open our mouth or widen our mouth. Okay, so this was the incubation period of mumps virus, that is paramyxovirus. Okay, paramyxovirus का incubation period 12 to 26 days. Okay, now one more thing. If we have not been infected from mumps since, अगर हमको अभी तक mumps नहीं हुआ है, then there are the chances that we can get infected. Okay, जैसे अगर किसी person को mumps नहीं हुआ है तो it is possible that कि adult life में that person may be affected from that mumps. Okay, now if one person is getting mumps, अगर एक बार उसको उसके लाइफ टाइम में मम्प हो गया है, देन अगेन ही विल नॉट बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिसीज. उसको वापस से रिपीट नहीं होगा ये डिसीज. ओके, लाइफ में सिर्फ एक ही बार होगा, एक बार हो गया, दूसरी बार नहीं होगा. अगर विद इन अवर चाइल्डहुड, और वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द डिसीजेस हैपन इन अवर चाइल्डहुड ओनली, नो. सो अगर चाइल्डहुड में नहीं हुआ है, then there is a chance कि that can happen in our adulthood also. और अगर adulthood में हो गया है तो आगे there is no chance for again happening this disease. Okay, is there any vaccine? Yes, there is a vaccine available for protecting, or we can say for the treatment against this disease. Okay, हाँ, डिसीज होने के पहले के लिए क्या कोई वैक्सीन है? Yes, we have studied a combination of vaccine, that is MMR. ओके, सो MMR इज द वैक्सीन जो हम बच्चों को अर्ली स्टेज में लगवाते हैं. ओके, विद इन द एज ऑफ 6 months to 1 or 1.5 year, दिस वैक्सीन हम उनको देते हैं सो दैट दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिसीज. क्या अगर we are in diseased condition or we are in infected condition, तो क्या हम इस चीज से बच सकते हैं? Yes, vaccines are also available for the treatment, and also the drugs are also available for the treatment. Okay, now what precautions should be taken against this? This is MMR vaccine for infants that should be given at the age of 6 to 12 months. Okay, and that too before disease. Now, what are the precautions that we should take? Do not take contaminated food and water. Okay, and next one, do not come in contact with infected person. And infected person should take rest. Okay, the person who is infected should take rest, because in the severe condition, अगर we can say that अगर हम दो infected person है उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, that तो in the severe condition this problem can increase. So what happens in the severe condition, we have intense abdomen pain, as well as there is very much pain in testis and swelling of the testis. Okay, so what happens in serious condition? Intense pain in abdomen and swelling in testis
and also pain. So जब तक ठीक नहीं होता, don't come in contact with the healthy person. Okay, don't try to go out or make our condition more serious. Okay, so it is highly contagious disease. It can spread or it can contaminate from we should say spread. It can spread from one place to another or from one person to another by directly coming in contact with that person or through droplet infection. Okay, so the next disease that we are going to take is polio. Polio is also called as poliomyelitis. Okay, in scientific language it is called as poliomyelitis. Okay, now the causative agent, or this is also a viral disease only. Okay, viral disease or causative agent for this disease will be any kind of virus only. Enterovirus or poliovirus. And this poliomyelitis is also called as infant पैरालिसिस. इन्फेंट पैरालिसिस भी बोला जाता है. क्यों इन्फेंट पैरालिसिस बोला जाता है? बिकॉज दिस डिसीज इज जनरली सीन इन इन्फेंट्स. ये डिसीज छोटे बच्चों में ही देखी जाती है जनरली. बड़े होने के बाद में ज्यादा इसका अफेक्ट नहीं होता है, वी कैन से. Okay, so this disease is mainly seen in infants only. और ये कम उम्र में ही बच्चों को अफेक्ट करती है. या तो एक रीज़न ये हो सकता है कि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, दैट्स वाई ये वायरस उनके ऊपर ज़्यादा डोमिनेट कर लेता है. Okay, so because of the domination of this virus, the infant can lead to paralysis. And paralysis कैसा? पूरी बॉडी का? No, not of पूरी body. Only some of the skeletal muscles or some part of the skeletal muscle is only affected in that. पूरी बॉडी का paralysis that only in adults, और सिर्फ पार्ट का कुछ some part of the skeletal muscles are being paralyzed, so वो हुआ poliomyelitis, or that is called as infant paralysis. Okay. Now, causative agent for this is enterovirus or poliovirus. Enterovirus क्यों बोला इसको? There is one reason behind this, because first it entered into our body through our intestine or through our alimentary canal. Okay, ये वायरस हमारी alimentary canal के through पूरी body में जाता है. That's why we said this enterovirus. Okay. Enterovirus because it moves, or we can say that it spreads in our body. It spreads in our body through our alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जाता है, इसीलिए हमने इसको बोला एंटेरोवायरस. और पोलियो कॉज करता है, इसीलिए हमने इसको बोला पोलियोवायरस. ओके, अब पहले इन द वी कैन से व्हेन देयर वर सम लेस स्टडीज ओवर दिस डिसीज, तो पहले ऐसा कहा जाता था कि ये डिसीज सिर्फ इन्फेंट्स में ही होती है. ओके, मतलब ड्यूरिंग द एज ऑफ ओनली 5 years, अप टू 5 years दिस डिसीज कैन हैपन इन द चिल्ड्रंस, और उसके बाद में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस वायरस ओवर अवर बॉडी. पर क्या ऐसा है? नो. न्यू रिसर्चेस टोल्ड अस दैट कि 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा, और वी कैन से दैट द चिल्ड्रंस विच आर बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 1 to 5, दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स दैट डिसीज. ओके, ज़्यादा प्रोन होते हैं वो उस डिसीज की तरफ में. पर क्या बड़े बच्चे नहीं होते हैं?
होते हैं, दैट आर ऑल्सो मोर प्रोन टूवर्ड्स दिस डिसीज, बट ड्यू टू द गुड इम्यूनिटी वी कैन से, ओके, ज्यादा इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है, दैट्स वाई दे आर नॉट वेरी मच ससेप्टेबल, और दैट्स वाई दे आर नॉट वेरी मच प्रोन टूवर्ड्स दिस डिसीज. Okay, so not only affecting the infants, this disease is also affecting to the adult person, or we can say more the age group of the children who are belonging or who are more than 5 year old. Okay, so पुरानी स्टडीज के कारण ऐसा बोला जाता था कि ये डिसीज सिर्फ इन्फेंट्स में होती है, इसीलिए इसको नाम दिया था इन्फेंट पैरालिसिस. ओके, नाउ अब ये वायरस हमारे बॉडी में आता कैसे है? ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, और वी कैन से दैट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज. ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, ये डिसीज हमारी बॉडी में आती कैसे है? The first and the foremost reason again for this disease is by taking contaminated food and water, and also by not maintaining hygienicity around our environment or around our home. This is the first and the foremost factor. Okay, by taking contaminated food and water, and by poor hygienicity. Okay, if we are not maintaining hygienicity around our home, then we are very much susceptible to this disease. Not only to this disease, there are many diseases, many thousands of the diseases are there which are responsible, or which can we can say which can take birth due to the contaminated food and water, as well as due to the poor hygienic conditions. Okay, now अब we have taken the contaminated food and water, so हमने खाना खाया, that was contaminated by this virus. ठीक है, तो that virus will directly enter into our stomach as well as into our intestine. वो directly हमारे intestine में जाएगा. Okay, now by taking contaminated food and water, virus entered into our small intestine, we can say. Okay, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में दैट विल क्रॉस द म्यूकोसा, वो म्यूकोसा को क्रॉस करेगा, उसके बाद में ब्लड में आएगा, सीलोम में आएगा. ओके, सो नाउ इट विल क्रॉस द म्यूकोसा एंड एंटर्ड इनटू ब्लड. अब ब्लड में आने के बाद में वो कहाँ कहाँ जा सकता है? पूरी बॉडी में जा सकता है. एक चीज कोई हमारे ब्लड में एंटर हो गई तो पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी, बट पूरी बॉडी में ट्रांसमिट होने के बाद में भी दिस वायरस इज गोइंग टू अफेक्ट मोर टू आवर CNS. वो ज्यादा हमारे CNS को अफेक्ट करेगा. ओके, सो आफ्टर एंटरिंग इनटू आवर ब्लड, आफ्टर क्रॉसिंग द म्यूकोसा एंड एंटरिंग इनटू आवर ब्लड, दिस वायरस विल go and affect our nervous system first, and to CNS. डायरेक्टली उसने जाके हमारे CNS को अटैक किया. अब CNS को अटैक करने के बाद में क्या होगा? When this virus has attacked our CNS, अब ये अपना असर दिखाना शुरू करेगा. Okay, after attacking to the CNS, इसके बाद में प्राइमरी सिम्टम्स होंगे हाई फीवर एंड
चिलिंग मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगना, शिवरिंग वाली कंडीशन, दैट इज नोन एज चिलिंग। तो बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, जॉइंट पेन होगा, दैट इज द नॉर्मल और वी कैन से दैट प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीजेस। ओके, हाई फीवर, चिलिंग, headache and joint pain, these are the primary symptoms जब CNS हमारे जब वायरस हमारी CNS में गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में दिस वायरस ऑल्सो डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद में वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा के CNS में जाएगा। CNS में जाने के बाद में उसने सबसे पहला अपना सिम्टम ये दिखाया। ओके, फिर आफ्टर दैट, उसके बाद में आफ्टर अटैकिंग टू अवर CNS, दैट विल अटैक टू अवर लिम्स और वी कैन से अवर स्केलेटल सिस्टम। वो CNS में जाएगा और CNS में जाने के बाद में हमारे लिम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा और वो जिस भी पार्ट को अफेक्ट करेगा दैट पार्ट ऑफ अवर स्केलेटल सिस्टम विल बी पैरालाइज्ड। ओके, नाउ प्राइमरी सिम्टम शो करने के बाद में अटैक टू अवर CNS and control the activity of skeletal system and any particular muscle is paralyzed now। कोई भी एक पर्टिकुलर मसल पैरालाइज्ड हो जाएगी। जैसे ही उसने हमारे CNS को अफेक्ट किया तो CNS की कुछ एक्टिविटी को वो अपने कंट्रोल में कर लेगा। ओके, और मेनली ये कंट्रोल करता है हमारे स्केलेटल सिस्टम की एक्टिविटी को। ओके, एनी ऑफ द पार्ट ऑफ अवर लिम्ब विल बी हाईली अफेक्टेड फ्रॉम दिस वायरस और उस हाईली अफेक्ट होने के कारण पैरालाइज हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, तो वो वी कैन से दैट स्मॉलर ऑर्गन ही रह जाएगा बिकॉज ऑफ नॉट डेवलपिंग प्रॉपरली, वो छोटा ही रह जाएगा। ओके, सो एनी पर्टिकुलर मसल इज पैरालाइज्ड। अच्छा, वह एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही उसने CNS को अफेक्ट किया, ओके, CNS को अफेक्ट करने के बाद में इसका एक सिम्टम जो है वो सबसे पहले दिखाई देता है, दैट इज स्टिफनेस टू आवर नेक। Stiffness to our neck, and the person who is affected by this virus will not be able to move his or her head in the forward direction। ओके, वो अपना हेड इस तरह से बेंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि CNS को अफेक्ट करने के बाद में उसने सबसे पहले हमारी नेक को स्टिफ कर दिया। स्टिफ कर दिया मतलब वी कैन से अब हम उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते। आवर नेक इज स्टिफ्ड एंड इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी नेक की खत्म हो गई। सो द पर्सन हु इज अफेक्टेड फ्रॉम दिस पोलियो, और उसका पहला सिम्टम होगा CNS को अफेक्ट करने के बाद में द नेक स्टिफनेस एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू बेंड हिज हेड टू इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सन not able to bend the head in forward direction। ठीक, नाउ अब हमारी मसल यहाँ पे इज टोटली पैरालाइज्ड। ठीक है, अब द वन हु इज पैरालाइज्ड, अब क्या उसमें ये वायरस they've been seen in some kind of body fluids like saliva or tears। No, इसके वायरस नॉर्मल बॉडी फ्लूइड्स में नहीं आते हैं, सलाइवा में नहीं आएंगे, टीयर्स में नहीं आएंगे। दे विल बी ओनली प्रेजेंट इनसाइड देयर ब्लड। ओके, बट
वो दिस वायरसेस शुड बी प्रेजेंट, और वी कैन से दैट ये वायरसेस जो हैं वो उसके यूरिन में और फीकल मैटर में प्रेजेंट होंगे. दिस वायरसेस आर प्रेजेंट इन द फीकल मैटर एंड द यूरिन ऑफ दिस इन्फेक्टेड पर्सन. देयरफॉर दिस पर्सन्स bathroom should be kept isolated so that other family members should not be exposed to this kind of viruses. Okay, अगर फैमिली में किसी को है तो उनका बाथरूम आइसोलेटेड होना चाहिए, बिकॉज देयर यूरिन एज वेल एज देयर फीकल मैटर कंटेन्स दिस काइंड ऑफ वायरसेस. एंड व्हेन दैट चिल्ड्रन, और वी कैन से दैट व्हेन दैट पर्सन इज अफेक्टिंग, उसको अगर वायरस उसकी बॉडी में अभी अभी गया है, दैट पर्सन हैज बीन रिसेंटली अफेक्टेड फ्रॉम दिस वायरस, तो देयर यूरिन एज वेल एज फीकल मैटर शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड, as well as that person should be isolated for some time. Okay, that person उसको थोड़ा सा isolate कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, और उनके यूरिन एज वेल एज फीकल मैटर को it should be disposed properly. Okay, now is there any treatment for this disease? If we are infected, तो क्या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है? No treatment and no vaccines. अगर इन्फेक्ट हो गए हैं तो देर इज नो सच काइंड ऑफ वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस डिसीज. तो क्या सबको हो जाता है? हम कभी प्रिवेंट ही नहीं कर सकते? नहीं, वी कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस डिसीज बाय टेकिंग वैक्सीनेशंस अर्लियर. ओके, सो पोलियो के दो टाइप के वैक्सीन अवेलेबल है, एक ओरल और एक इंट्रावीनस भी अवेलेबल है. ओके, सो in smaller children that oral vaccine is available and that are given up to the age of from 1 to 5, or we can say from the age of 6 months to the 5 years of age. So vaccines available for, or we can say that vaccines available for the situation before disease. Polio vaccine, both oral and intravenous. Oral is given to infants from the age of 6 months to 5 years. Okay, so we can be prevented from this disease. अगर हम छोटे बच्चों को up to the age of 5 years we are giving the polio vaccine. Okay, oral polio drops have been given to that infants. Okay, now क्या हम और प्रिय सिचुएशन रख सकते हैं प्रिवेंट होने की? Yes, we can prevent by this disease by not taking contaminated food and water. Okay, अगर हम contaminated food and water नहीं लेंगे, वायरस हमारी बॉडी में नहीं आएगा, हमारी बॉडी में आने के बाद में हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट नहीं करेगा, और we are not going to suffer from this hectic disease or this kind of infectious disease. Okay,